Assalamu alaikum friends and students. Today our topic is present continuous tense. Before starting this lecture, I would like to request you to subscribe our channel and share our videos as much as you can. And also go through our previous lectures which we have given on present simple and past simple and future simple, so that you will be able to understand this tense properly, and it will be easy for you if any question arises in your mind. Your doubts will be clear, well, because we have had foundation, we have laid a foundation in the present simple and past simple as well as in the future simple. We have discussed over there how to form the tenses, how to form the different sentences, positive, affirmative sentences, negative, interrogative and negative interrogative sentences in the tenses. So today our topic is present continuous tense. Present continuous tense, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा टेंस है, इसमें हम किन एक्शंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो टेंसेस हैं हमारे पास, हम इनमें एक्शंस के बारे में बात करते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम किस एक्शन के बारे में बात करते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो इस वक्त की कंटिन्यूइंग एक्शंस हो, और which we must say those actions which are happening at the present time, which are happening at the present time, right? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन कामों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखते हैं उन कामों के बारे में जो हम अभी के अभी कर रहे हों, which are going at the present time, which are continuing or which are happening at the present time. I will be giving you the example. This time, what I am doing, or what I am presently doing, which action I am doing this time. I am teaching you present continuous tense. जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूं, जो चल रहा हो, which is in progress, which has started and is continuing. एक काम जो स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, it becomes present continuous tense. So पहली चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन कामों के बारे में बात करते हैं which are going on at the present time or which are going on when we speak about them. जब हम उनके बारे में बात करते हैं और वो काम चल रहे हों, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। This is the first thing which falls under the present continuous tense. Number 2, present continuous tense एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करते हैं which we put forth for the future, जो हम intend करते हों, which we intend to do in the coming time. Just like the present future simple, just like the future simple, उसमें हम क्या कहते हैं, हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में करने वाले हों या आने वाले समय में करने का इरादा रखते हों। Same is the case. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम प्लान करते हैं कि हम ये आने वाले वक्त में करेंगे, which we perform in the coming time or which we put forth to do in the coming time. आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग एनी रॉकेट साइंस टुडे इन जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड टेंसेस, क्योंकि इट विल बी एम्बिग्युअस और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं इनको ज्यादा इलैबोरेट करूं या रिसर्च टाइप पे जाऊं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जामिनेशन के लिए है, एग्जाम में आप कैसे इसको फेस करें, एग्जामिनर कैसे पूछा हमें, एग्जामिनर कैसे एग्जाम में हमें आस्क करेगा क्वेश्चंस, हमें कैसे अपने एग्जाम को क्रैक करना है या क्वालिफाई करना है, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि इन यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उन दूसरी चीज उन कामों के बारे में बात करते हैं जो हम आने वाले वक्त के लिए रखते हूं करने के लिए, और which we intend to do in the coming time. Next, these are the three important things which I am going to talk about the present continuous, and rest is futile, which we need not to
go through or which we need not to comprehend at all for the examination point of view. तो तीसरी चीज हम टेम्पररी एक्शंस के बारे में बात करते हैं, टेम्पररी एक्शंस के बारे में या टेम्पररी थिंग्स के बारे में हम जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो टेम्पररी हों। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अगर मैं बोलूं आई लिव इन लंदन, आई लिव इन लंदन, सो आपसे मैं पूछूंगा ये कौन सा टेंस है, आप सीधे बताएंगे सर दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपसे क्वेश्चन करूंगा क्यों, आप सीधे बताएंगे सर वी हैव यूज्ड ओवर हियर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म और द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ और द V1 ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म और द प्रेजेंट फॉर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और ये वो चीज है जो हम परमानेंटली करते हैं। अगर आपको याद होगा जो हम परमानेंटली करते हैं, आई go for the morning walk, this is my usual action, this is my habitual action, this is my routine action, I do daily. Similarly ये भी है कि हम वहां पे परमानेंट है, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा I live in London, I live in Sopo, I live in Jammu and Kashmir. It becomes that you are permanently residing in Jammu and Kashmir. लेकिन अगर मैं बोलूंगा I am living in London, it means you are there for the temporary period, you are there for the temporary time, or it's we must say you have gone for the picnic over there, आप कुछ ऑफिस के काम से हैं, आप शायद वहां पे पोस्टिंग है, लिहाजा आप कहते हैं फोन करके आपसे कोई पूछता है अरे अरे आप कहाँ रहते हैं, आप कहते हैं सर आई एम लिविंग इन लंदन, it means and it signifies that you are talking about the temporary stay in London. Same is the case over here कि जब हम टेम्परेरी बातों के बारे में, टेम्परेरी एक्शंस या चीजों के बारे में डिस्कस करें वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। These are the main three things which we talk in this present continuous tense. Otherwise there are many other things which we can discuss, but these are sufficient for the examination point of view, because today we are suffering from we must say uploading these videos becomes difficult if these are huge. So इसलिए हम इनको curtail करते हैं, थोड़ा content करते हैं ताकि आपको भी टाइम मिले, आप भी इसे इजी डाउनलोड करें या इजी देख सकें अपनी स्क्रीन पे। अब रहा सवाल कि इसका जो है इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, या हम जिसे बोलते हैं कि सिंटैक्स या लॉ क्या बनेगा। तो आप सबको मालूम ही होगा सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस लेक्चर्स। बी फॉर्म का मतलब यहां पे है इज, एम, आर प्लस V4। V4 का मतलब मैंने बोला है इट इज द प्रोग्रेसिव फॉर्म, इट इज द कंटीन्यूअस फॉर्म, इट इज द जर्न फॉर्म, इट इज द ing फॉर्म, राइट। सो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस V4। सब्जेक्ट के साथ अगर इज लगाना है तो इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर्स के साथ, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल्स के साथ, और यू के साथ भी आर आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि यू को हम कंसीडर करते हैं ग्रामेटिकली एज प्लूरल, ग्रामेटिकली वी यूज इट एज प्लूरल, लेकिन यानी स्ट्रक्चर जब हम बनाना हो यू के साथ तो हम प्लूरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, अदरवाइज यू इज आल्सो यूज्ड विद द सिंगुलर। तो पता चला कि सब्जेक्ट के साथ is, am, are यानी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V4। सपोज मैंने एग्जांपल आपको देना है, I am eating food, I am eating food। अगर मैं बोलूं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो मैंने आपको बोला है this time, right, I am eating food this time। सपोज मुझे कोई दोस्त फोन पे पूछ रहा है डियर फ्रेंड आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो मैं उसे कहूंगा आई विल बी आंसरिंग हिम दैट आई एम ईटिंग फूड दिस टाइम, अभी तो मैं खाना खा रहा हूं, राइट। नाउ शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स,
right? She is washing clothes at present. She is washing clothes at present. या सबके हम बोलेंगे she is washing clothes. is के साथ V4, am के साथ sorry I था subject, am इस्तेमाल किया, singular था is इस्तेमाल किया. अगर they आया, असलम sorry students आए, stars आए, मैं कहूँगा they are running a race. They are running a race. स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? दे आर रनिंग अ रेस एट प्रेजेंट, या दे आर रनिंग अ रेस, अभी वो रेस कर रहे हैं, अभी वो रेस कर रहे हैं, उनकी दौड़ है, उनका कंपटीशन है रनिंग का, या वो जैसे उनका नॉर्मल जो है हैबिट है, तो वो अभी जो है अपने काम पे गए हैं, दे आर रनिंग अ रेस. तो हम कहते हैं दिस इज व्हाट, कि ये वो चीजें हैं जो हम अभी कर रहे हैं. एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज पूछता है, और जो भी प्रीवियस एग्जाम्स गए हैं बोर्ड के हो या एनसीईआरटी के, उनमें मैंने देखा है लुक ऐसे करके है, लुक इट डैश ब्रैकेट में रैन, ऐसे लुक इट डैश ब्रैकेट में रैन. सो लुक का मतलब क्या होता है? अरे देखो, जब मैंने आपको कहा देखो, it becomes the work and action of present continuous. It becomes the work or action of the present continuous. Look, अरे देखो, उधर देखो, something is happening, something is happening. Look, it is raining. Look, it is raining, right? Getting me? So these are the things which we are doing at the present time, or which are continuous at the present time, or which are going on at the present time. Next जो हमने किया था कि हम we put forth for the future. दूसरा जो हम सेंटेंस में इसमें बनाएंगे, दूसरी किस्म जो है सेंटेंस की हम इसमें बनाएंगे, वो है कि which we put forth, those actions which we put forth for the future, जो हम आने वाले समय में करने जा रहे हों. I am leaving for London at 4 p.m. ध्यान रखना my dear students and friends, इसमें क्या है? अब इस सेंटेंस को आप देखिए, you just comprehend and understand. I am leaving for London at 4 p.m. today. आज मैं शाम 4 बजे लंदन के लिए रवाना हो रहा हूं. अभी नहीं हो रहा हूं, बिकॉज अभी 4 नहीं बजे आने वाला समय है. I am leaving for London at 4 p.m. या I am leaving for London at night. आज शाम को मैं लंदन के लिए रवाना हो रहा हूं. और एक एग्जांपल, this year I am appearing for NEET exams. This year I am appearing for NEET exams. अभी नहीं हो रहा हूं, राइट? अभी किया नहीं, लेकिन इसमें यह है कि मैं अब अपना मन बनाया हूं, मैंने अपना जो है इंटेंशन बनाया है. आई एम वर्किंग फॉर दैट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो मैं किसी से अपनी इस इंटेंशन का इजहार कर रहा हूं. दिस ईयर आई एम अपियरिंग फॉर द नीट एग्जाम्स. इस साल मैं नीट एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहा हूं, आने वाला समय, राइट? और दिस इज व्हाट व्हिच वी पुट फॉर द फ्यूचर. तो टेम्परेरी, तीसरी चीज जो मैंने बोला आपको कि इसमें हम टेम्परेरी चीजों के बारे में बात करते हैं. इन चीजों के बारे में बात करते हैं, टेम्परेरी एक्शंस. सपोज उनमें से एक, यानी ये तीसरी किस्म है सेंटेंसेस की. सपोज अगर मैं बोलूं जो टेम्परेरी है, आई एम लिविंग इन लंदन. I am living in London जो है, it means I am not permanently living there. I just saying that this is the temporary action, this is the temporary state जो मैं लंदन में कर रहा हूँ, because my native land जहाँ में मैं permanently रह रहा हूँ वो जम्मू एंड कश्मीर है, या वो मैं सीधे श्रीनगर या सोपोर बोल सकता हूँ. तो ऐसे ही और एक मिसाल हम देंगे, she is
working in Dubai, right? तो सिंपली इसका माने क्या निकलेगा जब हम टेम्परेरी एक्शंस के बारे में बात करते हैं? तो इसका माने ये है, शी इज गोइंग टू लीव द जॉब नाउ, शी इज गोइंग टू कम बैक टू जम्मू एंड कश्मीर। सो इस तरीके से हम तीन किस्म के जो इंपॉर्टेंट मैंने बोले हैं, तीन किस्म के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम बनाते हैं। अब रहा सवाल कि मैंने आपको ये भी सिखाया है कि हम कैसे इंट्रोगेटिव्स, नेगेटिव्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि you have to go through my previous lectures where you will be able to understand, or you will be able to know how to form the other kinds of sentences in present continuous, जैसे मैं affirmative sentence जिन्हें हम declarative sentences भी बोलते हैं, या हम कहते हैं जिनमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट मी शो यू, बट इट विल बी ब्रीफ। जैसे हमने नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव का मतलब जिसमें ना हो, राइट? सो मैं क्या करता हूं, ला मेरा क्या रहेगा नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4। जैसे अगर मैं कहूंगा I am eating food, तो इसमें क्या बनेगा, I am not eating food this time, right? पता है इस सिंगुलर्स के साथ, am I के साथ और प्लूरल्स के साथ मैं कहूंगा you, तो you मैंने ग्रामेटिकली क्या बोला है, you is basically plural, you are not preparing hard for exams। आप एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करते हैं, तो इट मींस aren't, जिसे हम एमेंट भी शॉर्ट में कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं, या जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा aren't, एमेंट या aren't, सॉरी aren't, are not, एमेंट, am not, isn't, she is not, या she is not, she isn't coming today। मैंने किसी को बुलाया था पढ़ने के लिए, लेकिन उसने इन्फॉर्म किया है कि वो नहीं आ सकेगी। उसने कहा सर I am not coming today, she is not coming today, she isn't coming today। So this becomes negative। इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म करोगे? इंट्रोगेटिव में भी आपको ला है जो मैंने पहले ही सिखाया है। हमारे पास दो किस्म के सेंटेंसेस हैं, यानी इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो किस्म के WH and yes no। Let us see what yes no questions could be made in the present continuous tense। तो इसमें इंट्रोगेटिव जो है उसका जो लाग बनेगा that will be is या am या are, लेकिन कैपिटल में, राइट? is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। Is she cooking food, right? Are they running a race, right? Am I going for picnic? मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं पिकनिक जा रहा हूं। अपने आप से मैं मन से सवाल करता हूं, am I going for the picnic? Am I preparing for the exam? So this is introspection, you are asking the question to yourself। तो इसी के साथ हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है बनाते हैं। Isn't she working hard? Aren't they going to market? Amn't I coming with you? So these are all जो हम बना सकते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो मुझे लगता है दिस इज वेरी सफिशिएंट जो है लेक्चर फॉर दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। होप आपको समझ आया होगा, होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं आपको, जो जितने भी, चाहे हम
12 जो सेंटेंसेस 12 जो टेंसेस पढ़ेंगे उनमें जितना भी आपको एक्सरसाइज होगा एट द एंड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एग्जांपल्स आए होंगे वी विल बी सॉल्विंग देम विद द एक्सप्लेनेशन उनकी आपको साथ दूंगा। लिहाजा आप कंटिन्यू करिए हमारे वीडियोस एंड लेक्चर्स को आप जरूर देखा कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशंस एग्जाम के लिए हो। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना आपसे हो सके उनको शेयर कीजिए। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।